आप समझा। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. मोनिशा, म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग क्या होता है? इंटरेस्ट का जो इंटरेस्ट मिलता है उसे कंपाउंडिंग कहते हैं. It's like when the extra money you would have earned also potentially starts to make money for you. समझ में नहीं आया. इंटरेस्ट का जो इंटरेस्ट मिलता है उसे कंपाउंडिंग कहते हैं. It's like when the extra money you would have earned also potentially starts to make money for you. Smart, yaar. That's smart. You're so smart. Smart. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme. Namaskar. A very warm welcome to all. We're here to have a discussion on Shri Dhan Sampada, Women, Wealth and Wisdom. I have with me Mr. Gavi. Mr. Gavi is VP and Regional Head, Delhi NCR, Franklin Templeton, and he is in the financial services industry from the last 20 years. Welcome, Gavi, and thank you so much for taking out time and joining us. Thanks, Nisha madam. Thank you so much. So, women have always been, very exceptional in managing finances. From our grandmothers saving for the unseen to our mothers ensuring that every rupee was used wisely, financial wisdom is second nature to us. Gavi, I don't believe in the term women empowerment because for me, women are already empowered. Yeah. But the truth is that in today's world, we have no real voice until we are financially independent. And that's why we have kept this topic not to teach women something new, but to remind all of them, just like Jamvant reminded Sri Hanumanji of his powers, that you already have the ability to take charge of your financial future. The choice, the control, and the confidence comes when only you own your finances. Financial independence, it's not just about money, it's about having a say in your life. So, this year, International Women's Day theme is Accelerate Action. And I'm very excited to start discussion on Shri Dhan Sampada. So, Gavi, I'll start. I have jotted down few questions with me, right, which is from our female investors or my female friends, or which I have seen that, are the questions of women at various forums. So, I'll ask you questions and I'll request you to answer these questions. And अच्छा होगा अगर आप इन क्वेश्चंस का आंसर जो है बहुत सिंपल भाषा में बिना टेक्निकल जार्गन्स यूज करके दें. सो Sure. गमी मेरा सबसे पहला सवाल है आपसे कि व्हाट इज द नीड फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल प्लानिंग. जरूरत क्या है? मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी थोड़ा सा उसको टच अपॉन करने की, बट मैं Correct. आपसे सुनना चाहती हूँ कि विमेन, अगर एक वर्किंग विमेन है, एक मैरिड विमेन है हु इज वेल सेटल्ड इन हर लाइफ, राइट, सो व्हाई देयर इज अ नीड फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल प्लानिंग, क्यों करनी है फाइनेंशियल प्लानिंग? Okay. Thanks, Nisha, and good evening to everyone. निशा मैडम ने बहुत सही वर्ड्स यूज किया स्टार्टिंग कमेंट्स में. वो ये था कि हम लोग वुमेन को, इन्वेस्टर्स को फाइनेंशियल प्लानिंग सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, राइट. आई हैव learned
how to manage expenses, how to save the money from my mother, my sister, and my wife. Okay. Uh, Fortunately, I landed in a place where I know technicality better, but the wiseness of the women when it comes to money is far superior than men. I truly believe that. And second thing is that today, whatever I'm going to talk about is all that I'm going to teach or discuss, rather, not teach, with my mother, with my sister, with my wife. And I'm blessed with three children, and all of them are daughters. What I'm going to discuss today with you, I'm going to discuss the same thing with all my three daughters as I move ahead in my life. So it is as practical as it can be for all of us. सो निशा मैडम ने एक अच्छा सवाल पूछा कि वुमेन के लिए क्यों जरूरी है फाइनेंशियल प्लानिंग या सेविंग्स करना या वेल्थ करना है। उसके लिए बहुत कंपेलिंग रीजंस है। आई विल स्टार्ट विद सम दोस 3-4 रीजंस, कंपेलिंग रीजंस कि वुमेन के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग की क्यों जरूरत है। First reason, as Nisha madam mentioned, women is already empowered, women are working, they are earning their money. Even if they are not working, अगर हाउसवाइफ भी है, हमको पता है कि कितना बचत करते हैं हम लोग। कभी कभी हमको कैश चाहिए, कुछ पैसा चाहिए, इमीडिएटली वी फॉल बैक ऑन मदर और सिस्टर्स कि बॉस थोड़ा सा पैसा दीजिए हमारे लिए। द रोल ऑफ वुमेन हैज सिग्निफिकेंटली चेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। Historically, women has been looked upon as a nurturer or a caretaker for the family, but the role of women has changed from a caretaker as a nurturer to the provider for a family, that financial help that every man need. सेकेंड रीजन ये है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये रिसर्च किया हुआ है मेडिकल साइंस में, वुमेन आउटलिव्स मेन। द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द वुमेन इज हायर देन द मेन। Yes. अगर फैमिली में अगर खुदा ना खास्ता कुछ होता है, अगर आपका लंबा जिंदगी है, मैं विश करता हूं सब लोग जितना ज्यादा लंबा समय के लिए जिए वो बेटर है, बट फॉर यू कैन नॉट, यू हैव टू बी रैशनल, राइट, समटाइम्स व्हेन इट कम्स टू मनी। सो अगर आप जीते हैं बहुत लंबा समय के लिए, देन यू डोंट हैव अ ब्रेड विनर, देन व्हाट विल हैपन टू द फैमिली। एंड इट्स एक्सट्रीमली क्रूशियल टू अंडरस्टैंड। As I said, the third reason, there are many unforced situations that may affect our financial security. As I said, rationally, हो सकता है कि ब्रेड विनर फैमिली में कुछ हो जाए, या हमारा जॉब निकल जाए जो ब्रेड विनर का, या आज का तारीख में आप काफी जगह पे सुनते हैं कि डिवोर्सेस होते हैं। देयर आर ऑल रैशनली दैट वी नीड टू थिंक। दिस ऑल अनफोर्स सिचुएशंस may affect significantly our financial security. And there is a very nice study done by a women research organization which says that retirement balances of women are 30 to 40% lower than that of men across the globe. So जब ये हम लोग चार चीजें कंपेलिंग रीजन देखते हैं, this really calls for why a woman should be financially savvy. They should understand the finances. Even if you are not earning the money, you should definitely get involved in all financial decisions that a man does in the family, and that is extremely important for all of us to understand. So मैं चार चीजें बताया, but I'll bit expand in terms of financial planning and why women need that. As I mentioned, women are the best planner of finances. मेन अर्न करते हैं, जाके वुमेन के हाथ में पैसा देते हैं घर में, दे टेक केयर ऑफ कंटिंजेंसी फंड। इमरजेंसी में पैसा चाहिए तो कितना बचा के रखना चाहिए, महीने का ग्रोसरी से लेकर हाउस हेल्प, मिल्क मैन को पैसा देने का, कपड़ा आयरन करने का, ये पूरा जो बजट बनाते हैं ये एक तरीके का फाइनेंशियल प्लान ही है। बट हम लोग निजी जिंदगी में रियलाइज नहीं करते हैं कि हमारे पास कितना अच्छा स्किल सेट है जो हम लोग सही जगह पे अगर यूज कर सकते हैं। और सो आई थिंक वुमेन कैन बी द बेस्ट प्लानर ऑफ द फाइनेंशियल फॉर द फैमिली। ये तो शॉर्ट टर्म गोल से, हम लोग डेली गोल से, जो हम लोग मंथली गोल से हम लोग कोशिश करते हैं उसमें प्लानिंग करने के लिए। बट लुक एट एज अ फैमिली, देर आर मेनी अदर लार्ज गोल्स दैट वी नीड टू अचीव टुगेदर एज अ फैमिली। अगर आप एक फैमिली में, अगर हमारा फाइनेंशियल नीड्स बहुत है, बाइंग अ हाउस, बाइंग अ कार, किड्स एजुकेशन,
हॉलिडे प्लानिंग, काफी जगह पे आज का तारीख में कोई हम लोग ऐसा गवर्नमेंट जॉब में काम नहीं करते हैं, रिटायरमेंट के बाद हमारे पास इतना पूंजी होना चाहिए कि हम लोग काम ना करते हुए भी अपना हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग एक जार्गन है, बट फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ टूल और अ डायरेक्शन टुवर्ड्स अचीविंग ऑल योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स। एक फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक बहुत अच्छा सेंटेंस है, वो ये कहते हैं, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। एंड when it comes to investments and taking the saved money to invest and earn money out of it, we have to take that risk a bit and you have to invest. The biggest risk that every family carries, हमारा सभी का जिंदगी में ना कलर से, ना वेल्थ से, ना आपका प्रोफेशन से जुड़ा हुआ नहीं है, ये थेर है। There are only two things that can happen in our life. That is, either we live too long or we die early. And both needs equal amount of attention, so that if you live too long, when our legs give up to work, our mind gives up to work, we have enough money. If a breadwinners die early in the family, family should not be in darkness, that what will happen to our family in terms of financials. तो इसी सिंपल चीज को जो हम लोग निजी जिंदगी में करते आ रहे हैं, फिनेंशियल वर्ल्ड में इसको एक फिनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस बोलते हैं। ये फिनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस आपको हेल्प करता है कि आप आपका शॉर्ट टर्म और फाइनेंशियल गोल्स को एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेस से सेव करके, इन्वेस्ट करके आप आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल को कैसा अचीव कर सकते हैं। Not only about short term financial planning, what I call it as financial freedom is more important. What is financial freedom? It's a passive income that we need to create. As I said, retirement के बाद हमारे पास इनकम नहीं है, एज के बाद नहीं है पैसा हमारे पास, बट वी कंटिन्यू टू नीड द मनी। तो रॉबर्ट कियोसाकी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इसको आप इसको कोरिलेट करते हैं, ही इज नोन फॉर अ बुक कॉल्ड एज रिच डैड पुअर डैड। उन्होंने बहुत अच्छा तरीके से समझाया है फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है। फाइनेंशियल फ्रीडम इज एन अवेलेबल टू दोज हु लर्न अबाउट इट एंड वर्क फॉर इट। अगर आपको पता है कि आपके क्या जरूरतें हैं फाइनेंशियल नीड्स, अगर उसके बारे में आपको पता है, अगर आप उसके बारे में जानकारी रखते हैं और उसके लिए आप शुरुआत से काम करना शुरू करती है, तो आवर लाइफ विल बिकम बेटर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सो निशा, these are some of the compelling reasons women are the best financial planners. They do it on a daily basis. Financial planning is just a jargon in financial world, but that gives a direction for men and women which they can use to kind of decide to achieve their financial goals over a longer period of time. And I strongly believe women should have a financial freedom over a period of time to live a quality life as men lead. So these are some of the thoughts from my side, Nisha. Over to you. नहीं नहीं, थैंक यू गवी, काफी अच्छे कंपेलिंग रीजंस दिए आपने। आई थिंक एक पॉइंट मैं भी ऐड करना चाहूंगी। हमने ये देखा है कि कंपैरेटिवली विमेन का करियर ब्रेक जो है वो ज्यादा होता है, बिकॉज यू नो वी कभी ऐसा होता है हस्बैंड लाइक दूसरी सिटी में है, आफ्टर मैरिज वी हैव टू मूव विद आवर हस्बैंड और वी गो ऑन अ maternity break or Yes. you know to take care of our family members or kids education or so हमारे कंपैरेटिवली एवरेज हर वर्किंग वुमेन की लाइफ में एक ना एक करियर ब्रेक जरूर आता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस ब्रेक के टाइम जो हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा, सो बहुत जरूरी है कि हम फाइनेंशियली फ्री हों, हम फाइनेंशियल प्लानिंग करके रखें, ताकि ऐसे टाइम में व्हेन वी आर नॉट एक्टिवली अर्निंग हमें दूसरों पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। सो गवी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, जैसे हमने समझा कि फाइनेंशियल प्लानिंग की क्या क्यों करनी चाहिए और कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय करना जो है वो ज़रूरी है खुश रहने के लिए। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमें जो, जैसे हमने बोला विमेन बहुत अच्छी सेवर्स हैं, उनको सेविंग से आगे नेक्स्ट स्टेप बढ़ना है और इन्वेस्टमेंट करना है। तो Correct. जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो मार्केट में इतने सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं,
कि कई बार इन्वेस्टर्स विमेन कंफ्यूज हो जाते हैं कि एफडी है, आरडी है, पीपीएफ है, गोल्ड है, एनपीएस है, म्यूचुअल फंड्स है, रियल एस्टेट है, मतलब इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आप प्लीज ये बताइए कि हम इन ऑप्शंस को इवैल्यूएट कैसे करें कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना करना है। Okay, निशा, देर आर ब्रॉडली 4 और 5 एसेट क्लासेस जिधर पे निवेश करने के लिए आपके पास ऑप्शंस है। सो पहला ऑप्शन है रियल एस्टेट, जो हम लोग सब करते हैं, जो घर खरीदते हैं या लैंड खरीदते हैं। दूसरा ऑप्शन है प्रीसियस मेटल्स, जो गोल्ड, सिल्वर या डायमंड खरीदते हैं। फिक्स्ड अर्निंग इन्वेस्टमेंट है, जिधर पे हमको फिक्स्ड बैच मिलता है महीना भर या क्वार्टर में या हाफ ईयरली, जो एफडीज होते हैं या पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स होते हैं या कंपनी डिपॉजिट्स होते हैं। उसके अलावा एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट्स जो इमर्ज हुआ है ओवर ए पीरियड ऑफ समथिंग कॉल्ड एज इक्विटी। आई एम नॉट गेटिंग इनटू अ डिस्कशन की इक्विटी क्या होता है। आई थिंक जब आप निशा मैडम से मिलेंगे या धीरज सर से मिलेंगे, दे विल बी एबल टू एक्सप्लेन व्हाट इज एन इक्विटी। बट आप कोई भी आपके पास जो ऑप्शन मैंने बताया 4 या 5, आप इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट आप चूज करते हैं निवेश करने के लिए। But the basic principle that you always remember in your mind whenever you choose in any of these asset class, they come with different risk and different return. तो आपको बहुत जरूरी है समझने का किस प्रोडक्ट में क्या रिस्क है, उसके सामने आपको क्या रिटर्न बन सकती है। ये पहला है। सेकेंड, एवरी असेट क्लास आर बीन डिजाइंड फॉर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट हॉराइजंस। आप ये नहीं कह सकते हैं हमको इमरजेंसी फंड चाहिए, कभी भी जरूरत है, अगला महीने, अगला 3 महीने के बाद, अगला 1 साल के बाद, आप उस पैसे को जाके रियल एस्टेट में नहीं डाल सकते। सो आपको रिस्क रिटर्न पहला देखना चाहिए। सेकंड, ये चीजें देखना चाहिए कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है और उस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज करना चाहिए। तीसरा बेसिक प्रिंसिपल जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, आपको 5 चीजें देखने हैं। एंड आई विल मेक इट वेरी सिंपल सो दैट यू कैन रिमेंबर व्हेन एवर यू इन्वेस्ट योर मनी। सो द फर्स्ट 3 प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज SLR। तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूं। आप जो कैमरास खरीदते हैं, जो फोटोग्राफी के लिए जो कैमरा खरीदते हैं, उसमें जो लेंस होते हैं उसको हम लोग SLR लेंसेस बोलते हैं, राइट। तो आप अगर वो लेंस याद रखेंगे तो आपको SLR याद रहेगा। S stands for safety, L stands for liquidity, R returns for return। जितना भी असेट क्लासेस है, हर किसी में अलग सेफ्टी है, अलग लिक्विडिटी है और अलग तरीके का रिटर्न आता है। जब भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज करते हैं, बहुत ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि आप ये 3 प्रिंसिपल्स को याद रखें। मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल बोलता हूं। लिक्विडिटी हम लोग बहुत कम ध्यान देते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कई असेट क्लास ऐसा लगता है हमको बहुत बड़ा लिक्विडिटी है, बट उस लिक्विडिटी एक्चुअली ना के बराबर है। सो आई विल टेक अ क्लासिक एग्जांपल सो दैट यू अंडरस्टैंड। एज अ वुमेन, हमारा सबसे बड़ा फेवरेट एसेट क्लास है गोल्ड, बिकॉज वो अच्छा भी है, बुरा है, वो अलग डिस्कशन है। आपका पोर्टफोलियो में कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। गोल्ड नहीं, गोल्ड ऑर्नामेंट्स। गोल्ड, हाँ, गोल्ड, फिजिकल गोल्ड में ऑर्नामेंट्स होना चाहिए या आपका प्योर गोल्ड होना चाहिए, ये सब डिस्कस और डिबेटेबल है, राइट। बट यू लेट्स अप्लाई दैट सेफ्टी लिक्विडिटी रिटर्न पैरामीटर में। अगर आप देखते हैं, गोल्ड इज अ सेफेस्ट एसेट क्लास, गोल्ड हैज रीजनेबली गिवन गुड रिटर्न्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट हम जब लिक्विडिटी की बात करते हैं, गोल्ड आप आसानी तरीके से मार्केट में जाके बेच तो सकते हैं, उसमें कोई दौराया नहीं। बट इमेजिन करिए आपका हस्बैंड या आप खुद कभी भी ऐसा सिचुएशन आए हैं जो आपको पैसा चाहिए, गोल्ड इज द लास्ट थिंग दैट यू विल सेल, बिकॉज उससे हम लोग बहुत इमोशनली जुड़े हुए हैं। उसका एक सोशल स्टेटस है, या उस गोल्ड को हम लोग सेव करके रखा हुआ है अपना बच्चे के शादी में गिफ्ट करने के लिए, या कोई और रीजन से। गोल्ड भले लिक्विड है, बट अगर आप ये तरीके से लेते हैं तो उसको लिक्विडेट करना उतना आसान नहीं होती है, राइट। सो आप हर असेट क्लास में ये 3 पैरामीटर डालना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 पैरामीटर अप्लाई करने के बाद देयर आर 2 मोर थिंग्स दैट यू नीड टू लुक एट। द फर्स्ट थिंग इज इन्फ्लेशन। तो आपको ये भी मैं आसान बनाने की कोशिश करता हूं, ये भी एक जार्गन नहीं है एंड ऑफ द डे। इन्फ्लेशन ये है,
हम लोग अपना निजी जिंदगी में जो गुड्स और सर्विसेज को यूज करते हैं या कंज्यूम करते हैं, वो हर साल कितना रेट से बढ़ते जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन बेसिकली। अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, हमारा घर में काम करने के लिए मेड आते हैं, उनका सालाना इंक्रीज कितना होता है पैसा। आप ग्रोसरीज खरीदने जाते हो या वेजिटेबल खरीदने जाते हो तो आप दिखता है उसमें कि प्रीवियस ईयर से ये साल और प्राइस बढ़ा हुआ है। सो दिस इज इन्फ्लेशन। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पिछले 20 साल का एक इन्फ्लेशन नंबर बताते हैं कि वो है करीबन 6.5% से 7% का रेंज है, जो जिस दर से गुड्स और सर्विसेज का प्राइस बढ़ता है हर सालाना। बट ये आरबीआई कहता है, बट अगर आप निजी जिंदगी में देखेंगे, आप जब एक्चुअल एक्सपेंसेस करते हैं एंड वुमेन एक्चुअली स्पेंड मोस्ट ऑफ दर मनी ऑन बेसिक नेसेसिटीज फॉर द फैमिली, आप शॉपिंग में जाते हो तो आप देखते हैं प्राइसेस कितना बढ़ गए हैं। डॉक्टर का फीस, एजुकेशन फीस देख लीजिए आप किस दर से बढ़ रहा है। वो जनरली 6.5-7 नहीं है, उससे ज्यादा ही होता है। यस सर, एजुकेशन में तो 14-15% 14-15% का एक्चुअली इन्फ्लेशन है, राइट। सो आप जब निवेश करते हैं, आप उस इंस्ट्रूमेंट में डालना बहुत जरूरी है जो एटलीस्ट इन्फ्लेशन का रेट को बीट करे, सो दैट आपका जो पैसे का वैल्यू जो है, जिससे आप कुछ सर्विसेज या गुड्स को खरीद रहे हैं, आप उतना ही अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विस को नेक्स्ट टाइम कंज्यूम नहीं कर सकते, बिकॉज आपका 100 रुपए का वैल्यू अगला साल 100 रुपए नहीं रहेगा, वो 93 रुपीज हो जाता है। सो आपको बहुत ध्यान से ये देखना है कि इन्फ्लेशन को आपको देखना जरूरी है जब आप रिटर्न कंपैरिजन करते हैं। बट एक बहुत बड़ी चेंज हुई है पिछले 30-40-50 साल में इन्फ्लेशन में। हम लोग जब आरबीआई इन्फ्लेशन के बारे में बात करते हैं, वो बात करते हैं फूड इन्फ्लेशन, ऑयल इन्फ्लेशन, जो हमारा नेसेसिटीज है। बट आप ये जरूरी ध्यान रखिए, जो हम लोग 30-20 साल पहले जिसको हम लोग लग्जरीज माने जाते थे, नाउ देर ऑल बिकमिंग नेसेसिटीज, यस and that inflation is far higher than our basic necessities. क्लासिक एग्जाम्पल के दौर पे मैं आपको बता रहा हूं, आप कोरिलेट कर सकते हैं। मेरा ही एग्जाम्पल लीजिए। जब मैं प्रोबब्ली 8, 9, 10 ईयर ओल्ड था, तो पूरा मोहल्ले में एक टीवी हुआ करता था, बुश या क्राउन, जो छोटा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था एंटेना के साथ में। नाउ दैट वाज टू बी कंसिडर्ड एज अ लग्जरी। टुडे a 42-inch LED TV is a necessity, and the cost difference is huge. In case of TV, what is a luxury today? Having one in living room, one in bedroom, one in washroom is a luxury. आप हर चीज से कंपेयर करिए। टेलीफोन, पूरा मोहल्ले में एक घर में एक लैंडलाइन होता था एमटीएनएल का। आज घर में अगर 4 मेंबर है, 4 मेंबर के पास एक स्मार्टफोन है, and we want to change that phone every 3 years. If you are using an iPhone or a Samsung phone which is a high end, which comes with 50, 60, 70,000 bucks, घर में 4 फोन चेंज करने हैं आपको 1.5 से 2 लाख रुपए का कॉस्ट लगती है। ऐसा बहुत सारे चीजें हैं जो पहले हम लोग नेसेसिटी मानते थे या लग्जरी मानते थे, these are all become today necessities for us, and that comes with a huge cost. सो जब निवेश कर रहे हैं आप, सेफ्टी, लिक्विडिटी, रिटर्न के तरफ तो ध्यान रखिए, बट आप इन्फ्लेशन की तरफ पे भी बहुत ध्यान देना जरूरी है। और लास्ट पॉइंट, अदर पॉइंट दैट यू टू रिमेंबर इज टैक्स। दो आई एम नॉट अ एक्सपर्ट, Nisha madam is a great expert because she's a tax consultant also, and she's a qualified tax consultant. One thing that I want to say with you, that everything that we buy, you sell, whatever we make as a profit, we need to pay a tax on that. Not only that, we'll end up paying lot of indirect taxes on the goods and services that we buy today. So जब भी आप निवेश करते हैं, ये 4 चीजें आप बहुत ध्यान से देखिए: सेफ्टी, लिक्विडिटी, रिटर्न, इन्फ्लेशन एंड टैक्स। उसके बाद में आप रिस्क से जुड़िए। रिस्क जब आप सोचते हैं आपको क्या रिस्क ले सकते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है, और उसके आप निवेश से क्या रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो दीज आर द फ्यू थॉट्स ऑन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन,
what they should consider, and how they should look at holistically. तो गवी, मूविंग ऑन, जैसे आपने बताया कि इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों जरूरी है। सो अब हमें समझ में आया कि ओके, इन्वेस्टमेंट करना है, अच्छा है। बट मेन चैलेंज थोड़ा सा ये आता है कि समहाउ वी स्ट्रगल विद फाइनेंशियल प्लानिंग, कि क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, क्या स्टेप्स होने चाहिए। या सपोज कोई विमेन है, उसने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की जर्नी जस्ट स्टार्ट ही अभी करी है, हाँ तो जी। आप उनको क्या एडवाइस करेंगे, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? So it's very simple. The first thing that we need to remember is that हमारा नीड्स और वांट का डेफिनेशन जाना बहुत जरूरी है। कहीं टाइम ऐसी होती है हमारी जरूरत नहीं है बट स्टिल वी एंड अप बाइंग दैट। तो हमारा सिंपल फॉर्मूला है सेविंग्स का, और हमको थोड़ा सा उसको अलग तरीके से देखना चाहिए। हम लोग सेव किस तरीके से करते हैं? वी अर्न और मनी ऑन अ मंथली बेसिस, वी स्पेंड दैट मनी, देन जो बचा उचा है उसको हम लोग सेविंग्स में डालते हैं। बट हमारा कहना यह है, आप थोड़ा उसको उल्टा करिए। आप ये करिए, आप अर्न करते हैं, थोड़ा सेव करिए, देन स्पेंड करिए। मैं इस चीज के लिए कह रहा हूं, हम लोग स्पेंड के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, इट इज अनकंट्रोलेबल। आज हमारा हाथ में अगर बैंक अकाउंट में 50,000 रुपए एक्स्ट्रा बच गए हैं, तो हमारे लिए एक नया वांट क्रिएट हो जाता है कि हमको ये लेना चाहिए जो शायद हमारे लिए नेसेसरी नहीं है। So first thing that we have to change this formula. Second, there are basic principle in investment world. Everybody should dedicate that amount of money for rule. So एक रूल है एक इन्वेस्टमेंट के, इसको हम रूल कहते हैं 50-30-20 रूल। 50-30-20 रूल ये कहता है, अगर आप जो भी अर्निंग कर रहे हैं उसके 50% ऑफ योर मनी शुड स्पेंड टुवर्ड्स योर नीड्स। नीड्स आर रोटी कपड़ा मकान। 30% towards your wants, going to a restaurant, holiday, all those are our wants. They are not necessary your needs. 30% money can be utilized towards that. 20% of the money should go towards your savings. 20% अगर आप सेव कर पाते हैं, अगर आप इंडिया में, मैं अगर आप एग्जांपल बताऊं, ऑन एन एवरेज Indian earning member of the family, irrespective of the men or women, the saving rate is as high as 22%. But when it comes to women particularly, that saving rate is as high as 29%. So हमको ऑलरेडी पता है कि वुमेन आर द बेस्ट सेवर्स, बट डिसिप्लिन के साथ में अगर आप 50-30-20 रूल अगर फॉलो करते हैं, दैट कैन बी अ ग्रेट हेल्प in that journey to bring the discipline, the way you spend the money and the way you earn the money. तो इसके लिए सिंपल स्टेप प्रोसेस है, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। पहले आपको यह सोचना है कि एक पेन और पेपर लेना है, जो मेरा फादर और मदर अच्छा तरीके से करते थे, बिकॉज माय फादर वाज अ रिटायर्ड टीचर। हम 5 बच्चे थे घर में, इतना ही इनकम था, उसमें से ही सब कुछ मैनेज करने की बहुत जरूरत थी। तो मैंने उधर से सीखा है, अब मैंने वही लिखा हुआ है इधर पे कि मेरा फादर और मदर क्या करते थे हमारा फैमिली को रन करने के टाइम पे, फाइनेंशियल प्लानिंग करने के टाइम पे। एस्टिमेट योर मंथली इनकम फर्स्ट। आप कौन सा सोर्स है, आपके पास क्या इनकम आ रही है, आप लिखिए पहले। नेक्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई एंड एस्टिमेट योर मंथली एक्सपेंसेस। आपका महीने का खर्चा कितना हो रहा है जिससे आपका इनकम आ रहा है, आप वो सेकेंड स्टेप करिए। थर्ड स्टेप, ट्रैक योर स्पेंडिंग। जनरली ये होता है, हम एक्सपेंसेस तो डिसाइड कर लेते हैं और हम लोग लिख के भी रखते हैं, बट वो ट्रैक नहीं करते एग्जैक्टली पैसा उधर ही स्पेंड कर रहे हैं या कहीं स्पेंड ऐसा हो रहा है जिधर पे जरूरत नहीं है। तो आपको स्पेंडिंग को ट्रैक करना पड़ेगा, एंड एट द एंड ऑफ द मंथ जस्ट सी यू स्पेंड व्हाट यू प्लान्ड और यू आर स्पेंडिंग मोर देन व्हाट यू हैव प्लान्ड। चौथा स्टेप है, सी फ्रॉम वेयर यू कैन सेव मोर मनी। वो स्पेंड आप जब ट्रैक कर रहे हैं, आप उसमें से निकल के आएगा, शायद इसको हम लोग स्पेंड नहीं करना चाहिए था, जरूरत नहीं थी, वही पैसा आपका सेविंग में कन्वर्ट हो सकता है। फिफ्थ, ट्राई टू क्रिएट एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम।
मेरा बहुत बड़ा मानना ये है, जैसा निशा मैडम ओपनिंग कमेंट्स में भी बताया है, वुमेन आर एम्पावर्ड इनहेरेंटली lot of skill set than men. Men in their easy time, free time, just kill the time on unnecessary thing. But women spend that time also so wisely. And I've seen many people. My daughter is 10-year-old. She goes to Kathak class and she goes to dance class, both. The Kathak teacher is actually an IT professional, but she also run a dance class. A teacher who she goes for a drawing class, she's actually a teacher in Amity International School in Noida, but at the same time she's doing a drawing class for the kids. So she's thinking about the additional source of income from where that money can earn, so that I can better save the money over a period of time. So अगर आपका स्पेंडिंग से थोड़ा पैसा बचा सकते हैं, अगर आपका एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम से थोड़ा पैसा आ सकता है, दोनों को कंबाइंड करिए सो दैट यू कैन सेव बेटर मनी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. बट इसमें बहुत बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैसेट ये है निशा, एक्चुअली मैडम, अगर आप डिस्कशन कर रहे हैं, भले हम लोग बताते हैं कि आप थोड़ा अर्न करने के बाद सेव करिए, स्पेंड करिए, 20% सेविंग की तरफ जाना चाहिए, आप एक्सपेंस सेव करिए, थोड़ा एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम करिए, ये दिस ऑल कम विद अ बिट ऑफ टाइम एंड डिसिप्लिन. मैं आपको क्लासिक एग्जांपल बताता हूं. लोग ये पूछते हैं, मैं काफी सारे जब इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम में जाता हूं, पर्टिकुलरली वुमेन, बहुत सारा इवेंट किया हम लोगों ने, वो ये कहते हैं कि सर, सब ये कहते हैं कि आप सेविंग करिए, पैसा कहां से आएगा सेविंग करने के लिए, हमारा तो इतना ही इनकम है, इसमें ही सेव करना है. So I kept on telling this example to my wife, and because of which, believe me, this is a truth. जो मैं मंथली स्पेंड करने के लिए पैसा देता हूं, जिस दिन मैंने एग्जाम्पल बताया मेरा वाइफ को, शी स्टार्टेड डूइंग एन SIP ऑफ 2,500 रुपीज पर मंथ. ये एग्जाम्पल सिंपल ये मैंने बताया मेरा वाइफ को घर पे कि चलो हम लोग वीकेंड में क्या करते हैं. मैं मुंबई शहर में रह के आया हूं या पुणे में रह के आया हूं. मुंबई शहर में तो हम लोग वीकेंड पे एक ही जगह जाने के लिए, वो है मॉल. दिल्ली में फिर भी लकी है आप लोग कि आप हिल स्टेशन से काफी सारा हेरिटेज साइट से देखने के लिए, बट मुंबई में तो खाली होता था मॉल में जाने के लिए. कल पे ही जाते हैं सब वीकेंड पे, यहाँ पे भी जाते हैं. सो मॉल ही जाते अभी हैं. अभी इमेजिन करिए आप, एक वीकेंड पे अगर आप मॉल में जाते हैं एक मूवी देखने के लिए, वो मूवी देखा आपने, you have a 3-member or a 4-member family, you will end up spending probably $2,000. Then post movie you go to the watch the movie, we go to dinner for a restaurant, then you will end up spending probably another 2 to 3,000 rupees. So you'll end up spending $4,000 to $5,000 in that weekend. I am not saying you don't watch a movie, go to the restaurant. I am just saying how you can prioritize a simple saving mechanism with this one example. What I observed in last 3-4 years, since the OTT platforms have come, the best super hit movie comes in any of the platforms within 1 month. Yeah. The average movie comes in 15 days. The flop movie will be next week in your OTT platform. What we need to do, we need to hold those emotions only for that 15 days or 1 month. You will end up saving $2,000 for yourself. आप रैशनली अगर ऐसा बहुत सी चीजें, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग उसको ध्यान से अगर देखेंगे, दिस विल क्रिएट डेफिनेटली एन अपॉर्चुनिटी टू सेव अ बिट ऑफ मनी. सर एक सो और दीज बहुत आर easy तरीका है, सॉरी मैडम. एक और बहुत इजी तरीका है. हाँ प्लीज. जैसे काफी विमेन को ना शॉपिंग का एडिक्शन होता है, करेक्ट. उसका इजी तरीका है जो मैंने भी फॉलो करा है. हाँ जी. आप अपने फोन में से सिर्फ एक शॉपिंग ऐप रखो, बाकी सब उड़ा दो. हाँ जी. आपको ऑटोमेटिक आप देखोगे मंथली बहुत एक्सपेंडिचर सेव होएगा. हाँ. ये मेरे को मेरी सिस्टर ने बताया था, बहुत अच्छा ट्रिक, हाँ जी. कि आप इस पे बहुत अमाउंट स्पेंड करते हो, अपने फोन से ऐप ही उड़ा दो. Very nice suggestion. इट रियली So, हेल्प मी. and Nisha, one more interesting point about shopping is that it's a well-researched, someone, a big advertising company, global company. It says that generally as a human being, you do impulsive buying. हम लोग बहुत impulsive buying करते हैं. The decision to buy something or not to buy get decided within 3 seconds. So that 3 second we need to just hold that back and say whether this is really needed for us to buy or not. यस सर.
बाय then 340 automatically बाय 240 सिंपल 3 लेना है फिर. correct, absolutely correct, absolutely correct. I completely agree with you on that. ओके सर. सो जो आपने स्ट्रेटजी बताई, अब आप उसमें थोड़ा सा ये बताइए, जैसे जब हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, हम टीवी में बहुत एड्स भी देखते हैं. अब बात आता है कि चलिए हमने थोड़ा सा प्लान बनाया, अमाउंट सेव करा, आगे इन्वेस्ट करना है, हमने एसएलआर मॉडल आपने बताया, उस तरीके से एनालाइज करना चाहिए. तो अगर सपोज, क्योंकि जैसा हम आजकल देखते हैं कि जितने लोग हैं जो मतलब हु आर डूइंग वेल इन देयर लाइव्स, दे हैव मेजर चंक ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन देयर इन्वेस्टमेंट किटी. काफी लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, वहां से काफी पैसा कमाते हैं. सो आप मुझे बताइए कि जब हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, काफी इसकी एड्स देखते हैं, म्यूचुअल फंड सही है. सो म्यूचुअल फंड क्या रोल प्ले करता है हमारे फाइनेंशियल यू नो फ्रीडम तक पहुंचने के लिए, या फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए? किस तरीके से वो जो हम बात कर रहे हैं कि एक छोटी सी एसआईपी करो, तो एक छोटी सी एसआईपी कितना बन जाती है, कैसे हम वो फाइनेंशियल प्लानिंग अचीव कर पाएंगे, अपने गोल्स अचीव कर पाएंगे? Okay, this is a very interesting question actually, Nisha. Over a period of time, mutual fund industry existence 30, 35, 40 years में जो है, लोगों को एक बहुत बड़ा मिथ ये है इन्वेस्टर का लेवल पे कि म्यूचुअल फंड मतलब शेयर बाजार है. ओके, बिफोर आई गेट हाउ म्यूचुअल फंड एंड हेल्प, आई वांट टू डिस्कस अबाउट दैट मिथ. देखिए, म्यूचुअल फंड जो है वो एक व्हीकल है. आपका जो अर्निंग्स या सेविंग्स का जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं आप, उसको आप अलग अलग डिफरेंट असेट क्लास में निवेश कर सकते हैं. म्यूचुअल फंड इज नॉट ओनली अबाउट शेयर बाजार. म्यूचुअल फंड इज अ कलेक्टिव व्हीकल. आपको बहुत सारा ऑप्शन देते हैं निवेश करने के लिए. जैसा कि मैंने बताया, अगर आपको से फिक्स्ड इनकम अर्निंग रिटर्न वाला प्रोडक्ट है, उसके लिए डेट कैटेगरी है. आपका सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखने के लिए आपके पास डेट फंड्स है. आप गोल्ड में निवेश करते हैं, उसके लिए फंड्स अलग है. रियल एस्टेट के लिए अलग फंड्स है और इक्विटी के लिए अलग फंड्स है. जैसा मैंने ओपनिंग कमेंट्स में बताया, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन रिस्क और रिटर्न के बेसिस पे आप कोई भी असेट क्लास में म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश कर सकते हैं. पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि म्यूचुअल फंड एक व्हीकल है, ये शेयर बाजार नहीं है खाली, राइट. अभी म्यूचुअल फंड में जब आप निवेश करते हैं, अलग अलग फंड में अलग अलग असेट क्लास में जब आप चूज करते हैं, उसमें दो तरीका है जिधर पे आप निवेश कर सकते हैं. एक तरीका है, आपके पास पैसा है, आप उसको लमसम रूप में डाल दीजिए, एक ही वन टाइम यू जस्ट गो एंड इन्वेस्ट द एंटायर मनी इन एनी एसेट क्लास दैट यू चूज. सेकेंड ऑप्शन जो है उसको हम लोग सिप कहते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. सिस्टमेटिक इन्वेस्ट प्लान इंडिया में कोई ऐसा नया खोज नहीं है. अगर आप देखेंगे हिस्टोरिकली, अगर आप फादर या मदर से या कभी भी घर में आप फाइनेंशियल के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं इन चाइल्डहुड डेज, इसमें एक होता था पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट. वो यही होता था कि आप हर महीना निवेश करिए, उसके ऊपर आपको एक इंटरेस्ट मिलेगा, आप उसको निवेश करते जाइए 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए. आप उसी पैसे को जरूरत जब पड़े आप उस पैसे को निकाल सकते हैं. वही एसआईपी है म्यूचुअल फंड में. एसआईपी एक टूल है, एक जरिया है जिधर पे आप स्मॉलर अमाउंट्स के थ्रू लार्जर फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए अलग अलग फंड्स में अलग अलग असेट क्लास जो इनमें निवेश करते हैं उसमें आप निवेश कर सकते हैं. सो जैसा हम लोगों ने बहुत बार सुना है, घर में बूंद बूंद से सागर बनती है, राइट. आप वैसा ही इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में लोगों को एक बहुत बड़ा मिथ ये है कि अगर हमको फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करना है जिधर पे 25, 30, 50 लाख या 1 करोड़ लगता है, लोगों को लगता है कि हम लोग इसको छोटा निवेश करके अचीव नहीं कर पाते. आप भले आप महीने का 500, 1000, 10,000, 5,000 आप निवेश करके कहीं फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में एसआईपी आपको बहुत मदद करता है. दूसरा एसआईपी का तरीका है देखने का ये है, हम लोग जनरली महीना अर्न करते हैं, देन व्हाई वी शुड नॉट सिंपली सेव दैट मनी ऑन अ मंथली बेसिस. जब आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जब थ्रू इन्वेस्टमेंट्स करते हैं,
आपका एक डिसिप्लिन बन जाता है महीना भर महीना पैसा सेव करने का. That discipline itself will take care of investing money for the longest period of time with small amounts. वो SIP के थ्रू अगर आप कर पाते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाता है. SIP भी ऐसा नहीं है कि आपको खाली इक्विटी में ही करना है. जैसा अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के दौर पे बताऊं, कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग में जब आप अलग अलग असेट क्लास में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, अगर उसका एक हेल्दी पोर्टफोलियो बनाना है तो हमारा निजी जिंदगी से बहुत जुड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको हेल्दी जिंदगी जीना है तो हमारा डाइट प्लान अच्छा होना चाहिए. हमको एक्सरसाइज करना है, सबको पता है. डाइट प्लान में भी ये होता है, आप सही मात्रा में प्रोटीन खाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, विटामिन्स खाना चाहिए, so that your health will remain better and good over a longer period of time, right? उसी तरीके से अगर आपका जब फाइनेंशियल प्लानिंग में कई एसेट क्लास में आप या इन्वेस्टमेंट लमसम के थ्रू कर रहे हो, एसआईपी के थ्रू कर रहे हो, आप अगर आप उसी मात्रा में अगर आप गोल्ड में निवेश भी कर रहे हो एसआईपी के थ्रू, आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी कर रहे हो, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा डिवर्सिफिकेशन बेनिफिट मिलता है, एक असेट एलोकेशन का बेनिफिट मिलता है. उस जरिए आप म्यूचुअल फंड में जब निवेश करते हैं, स्मॉल अमाउंट एसआईपी के जरिए आप अलग अलग असेट क्लास में आप जब लंबा समय के लिए निवेश करते हो तो आपके लिए फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए बहुत हेल्प होता है. मैं आपको एग्जाम्पल दौर पे बताता हूं. एक इक्विटी करके जो असेट क्लास है उसमें काफी लोग निवेश करते हैं आज का तारीख में, जैसा मैडम बता रहे हैं, बिकॉज अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है आज का तारीख में. अगर आपको मैं बताऊं, आज का तारीख में इंडिया में करीबन 11 करोड़ लोग एसआईपी के थ्रू निवेश करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में, और जो महीने भर महीना जो सेविंग करते हैं 11 करोड़ लोग, जो महीने का जो सेविंग जो टोटलिटी में होता है वो करीबन है 26,000 करोड़, 26,000 करोड़. इसमें जरूरी नहीं है कि 26,000 करोड़ में सभी लोग 15, 20, 25,000 ही सेविंग कर रहे हैं डे वन से. आप एज लो एज 500,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, बट वो 5,000, 500 या 1,000 रुपए आपका फाइनेंशियल गोल अचीव करने में मदद करेगा या नहीं करेगा, दैट आई थिंक यू शुड डिस्कस विथ निशा मैडम एंड धीरज सर. दे विल बी एबल टू प्लान एंड टेल कि आपका फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए कितना एसआईपी का अमाउंट लगाना बहुत जरूरी है. इसमें एक और बहुत बड़ी चीज है, जैसे मैंने बताया कि बूंद बूंद से सागर बनता है. आप भले शुरुआत कीजिए 1,000 रुपए से, 2,000 रुपए से, 5,000 रुपए से, बट जैसा जैसा आपका इनकम बढ़ते जाता है, आप वही एसआईपी को, हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट उसको बोलते हैं हम स्टेप अप एसआईपी. आप उसी एसआईपी का जो 1,000 रुपए से चालू किया था आपने, हर साल 500 से बढ़ सकते हैं या 10% से बढ़ा सकते हैं. अगर आपके पास कहीं से एक इनकम आ जाती है, जैसा कि अगर आप कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको दिवाली का बोनस आता है फॉर एग्जांपल, आप उसी पैसे को फिर आप उस एसआईपी का इन्वेस्टमेंट के साथ में जुड़ सकते हैं. अगर आप इस तरीके से म्यूचुअल फंड स्कीम्स को यूज कर सकते हैं और बहुत सिंपल तरीके से बहुत छोटा अमाउंट से शुरुआत करके अगर आप स्टेप अप करके सही असेट एलोकेशन करके अगर आप निवेश करते हैं तो आपका फाइनेंशियल गोल अचीव करने में काफी मदद हो सकती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो दोज आर माय understanding in terms of how we can do SIP and how SIP will help you to create that wealth. ऑलरेडी कितना लोग जुड़े हुए हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एसआईपी रूट के थ्रू, तो आप म्यूचुअल फंड जरूर निवेश करना चाहिए. उसमें एसआईपी थ्रू के अगर आप करते हैं तो आप छोटा रकम से भी स्टार्ट कर सकते हैं. निशा, आप म्यूट पे है शायद से. सर मेरे पास एक छोटा सा नंबर है, सो दो यू आर द स्पीकर बट इफ यू अलाउ मी जस्ट फॉर 1 मिनट मैं कुछ मैजिकल फिगर्स दिखाना चाहूंगी पार्टिसिपेंट्स को. सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन फॉर 1 मिनट. आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल. यस. तो यहाँ पर मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को जस्ट एक छोटी सी कुछ नंबर दिखाना चाहूंगी. देखिए आप दिल्ली में जैसे सपोज करिए एवरेज है कि सबके घर में एक बच्चा 2 बच्चा होता है, राइट?
सो अगर मैं आपसे पूछूं कि उनका मंथली एक्सपेंडिचर पढ़ाई का कितना होता है, तो एक एवरेज फिगर ली है मैंने। सपोज एक बच्चे पे हम 15,000 रुपए खर्च करते हैं और हमारे 2 बच्चे हैं। तो अब मैं आज इस वेबिनार में आप सबको एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगी, आप जाके अपने स्पाउस से डिस्कस करिए और आप एक थर्ड बच्चा प्लान करिए। अब ये थर्ड बच्चा कौन है? ये एसआईपी है, ये रियल बच्चा नहीं है, ये एसआईपी है। अगर आप अपने 2 बच्चों पे 15-15 हजार रुपए महीने के लगा रहे हैं, तो मैं आपसे कह रही हूँ आप एक थर्ड बच्चा अडॉप्ट करिए जो कि एक एसआईपी है 15,000 की। और जैसे हम अपने बच्चे को 18 ईयर्स तक स्कूल में पढ़ाते हैं, एजुकेशन पे लगाते हैं, आप ऐसे ही इस एसआईपी को अगर 18 साल तक चलाएंगे तो आप देखेंगे, अगर हमने ये म्यूचुअल फंड में लगाया, एसआईपी लगाई है, तो आपका 18 साल के बाद जो कॉर्पस आपके पास इकट्ठा होगा वो होगा 1.26 करोड़। 1.25 करोड़ रुपए आपके पास होंगे। तो मुझे नहीं पता कि आपका जो बच्चे हैं वो आपकी जिम्मेदारी लेंगे या नहीं लेंगे, बट मैं गारंटी दे सकती हूँ कि ये जो आपका थर्ड बच्चा है एसआईपी, ये जरूर आपकी गारंटी लेगा, आपको आगे आराम से पेंशन देगा। और इस थर्ड बच्चे की वजह से आपके 2 बच्चे भी आपका ध्यान रखेंगे। सो ये हमें कई बार मतलब जनरली हम चीजों फिगर्स पे इतना ध्यान नहीं देते, हमें इतना पता नहीं चलता। बट जो हम बोलते हैं ना, पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल। और इसी में एक छोटा सा चेंज कर रही हूँ, ये जो हमने 18 साल तक पैसा लगाया, अब मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप उस पैसे को निकालो मत, सिर्फ 5 साल के लिए उसको एज इट इज पड़ा रहने दो। तो आप देखोगे ये जो आपका 1.25 करोड़ रुपया था, ये आपका 2.25 करोड़ रुपया हो जाएगा। ये आपका पैसा जो है ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो ये जादू है, ये मैजिक कंपाउंडिंग का। यस सर। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, या देखिए अभी जैसे हमने कुछ नंबर्स दिखाए, बात करी थोड़ा मार्केट लिंक इंस्ट्रूमेंट्स की, म्यूचुअल फंड्स की, हमने अक्सर देखा है कि जब भी म्यूचुअल फंड की बात आती है या कुछ भी मार्केट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स की बात आती है, तो विमेन जो है वो काफी हेजिटेट करती हैं। उनको लगता है कि नहीं नहीं, मैं तो आई एम एफडी पर्सन, मुझे तो एफडी समझ में आती है, हमारा तो पीपीएफ कट रहा है वही ठीक है। मतलब थोड़ा सा मार्केट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट से विमेन जो है वो डरती हैं, थोड़ा सा पीछे रहती हैं। सो क्या आप बताएंगे कि इस हेजिटेशन को कैसे ओवरकम करें? Okay. So I think, Disha, the first thing that comes to my mind is that कि hesitation इसके लिए होता है, historically in India or in the world, generally women are not involved in financial decision making in family. Okay. तो जब क्या होता है कि आप किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं है, आपको डर लगता है कि हम लोग सही निवेश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, then what happens, you choose the safest bet that is possible. And I think that is where the problem that got started, the first problem starts from there. And the challenge historically that women faced is that कमियां रह गई है वो असेट क्लास में या निवेश करने में, एजुकेशन, एक्सपोजर और एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए दे ऑलवेज बीन केप्ट आउटसाइड ऑफ दोस फाइनेंशियल डिसीजंस. I think that is the biggest reason that why women hesitate to invest their own money in different asset classes or mutual funds or mark to market. बट मैं एक बहुत क्लासिक एग्जांपल देना चाहता हूं. ऐसा जरूरी नहीं है कि वुमेन इन्वेस्टर्स को मार्क टू मार्केट या मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट में कोई एक्सपीरियंस नहीं है. मैं आपको एग्जांपल बताता हूं. जैसे मैंने पहले कमेंट में बताया था, जनरली गोल्ड खरीदने के टाइम पे 100% वुमेन का या वुमेन फैमिली मेंबर का इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है, इसमें कोई दो दौराई नहीं है. राइट नाउ जब आप गोल्ड में निवेश करते हैं, फॉर एग्जांपल, गोल्ड का भी जो प्राइस है जो ऊपर नीचे, मार्क टू मार्केट इज बेसिकली जो मार्केट लिंक्ड ये होता है, हर असेट को जो आप खरीद रहे हैं उसमें मार्केट में रोज उसका प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है. दैट इज कॉल्ड एज मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट. यस। गोल्ड का भी जो प्राइस है रोज चेंज होता है. आप देखिए हिस्टोरिकली, पहला गोल्ड हुआ करता था 30,000, देन 50,000, देन इट केम बैक टू 40,000, देन वो हो गया 70,000, इट अगेन बिकम 65,000, नाउ गोल्ड इज एट 85,000. गोल्ड का प्राइस भी ऊपर नीचे जाता है. दे नो गोल्ड का प्राइस भी ऊपर नीचे जाता है. दैट इज व्हाट इज मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट. बट इसमें क्या है,
हम लोग ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देते एज अ वुमेन इन्वेस्टर। भले गोल्ड का प्राइस ऊपर नीचे जाते रहे, हम लोग गोल्ड क्यों खरीद रहे हैं कि आइदर वी कंज्यूम एज अ सोशल स्टेटस या तो नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करो। तो हमारा जो होल्डिंग पीरियड है इतनी ज्यादा बड़ा है गोल्ड में, उससे गोल्ड का प्राइस ऊपर न जाए या नीचे जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी वजह से गोल्ड को हम लोग लॉन्गेस्ट पीरियड होल्ड करते हैं और गोल्ड में भी मार्केट लिंक्ड ही है एंड ऑफ द डे। सो निशा, मेरे को लगता है कि उसमें थोड़ा आप और हम या जिसमें लोग जो जुड़े हैं हमारे में, आई थिंक वुमेन का एक स्पेस होना चाहिए। एज आई सेड, दे आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल, दे आर अ वेरी गुड फाइनेंशियल प्लानर्स फॉर देमसेल्व्स, दे नो हाउ टू कंट्रोल द एक्सपेंड एंड हाउ टू सेव। अगर हम लोग हर वुमेन को घर में हमारे साथ में जुड़ पाए इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए, या वुमेन खुद इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, I think we have to focus a bit on awareness, confidence building, education for them, share information with them, involve them in financial planning at a regular interval. Or your husband is not involving you, I think you should take a first step to involve in those financial decisions to see how our family doing in financial planning. I think if these 2 3 things can be done, one, men has to take a responsibility of involving women in all financial decision. We need to make effort every time to create that awareness, confidence and education. And women who earns their own money has to take own investment decision rather than depending for that also on the men at a regular interval. And most importantly, as I say, इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ी चीज है जो हिस्टोरिकली जो हुआ है, अगर आपको अच्छा वेल्थ क्रिएट करना है, 2 चीजें बहुत जरूरी है। एक है पेशेंस और है लॉन्ग टर्म विजन। आई डोंट थिंक सो देर आर एनी पर्सन बेटर ऑन दिस अर्थ देन वुमेन। द पेशेंस लेवल ऑफ वुमेन इज एक्सट्रीमली हाई। जो मार्केट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट में सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज जो होना चाहिए वो है पेशेंस, एंड सेकेंड इज लॉन्ग टर्म विजन। माई मदर यू ऑलवेज यूज्ड टू टेल माई फादर, हमको ये करना है क्या? माई मदर यूज्ड टू टेल, नहीं, ये मेरे पास 5 बच्चे हैं, उनका शादी है, उनका एजुकेशन है, उनको घर बनाना है। बिकॉज हम लोग एज अ पेरेंट एट दिस यंग एज डू नॉट थिंक कि मेरे बच्चे को घर बना के देना है, हम लोग उस तरीके से नहीं सोचते। बट मेरा फादर मदर्स पर्टिकुलरली यूज्ड टू हैव अ वेरी लॉन्ग विजन कि हमको ये बच्चे को ये सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करके जाना है। एंड देयर इज अ बेस्ट सेइंग, humility is the best thing in investing. That humility come from discipline, patience and seeking help. I don't think so nobody can this humility without women. So I think for this, if we can do these 4 or 5 things and you involve the strength of the woman as a humility, a discipline, patience into our investments and combined, I think we will have a much more superior outcomes and which will have a much better wealth over a period of time, Nisha. I think it's just need that nudge, involvement, building confidence and giving a right education. वेरी वेल सेड गवी। देखिए, मेरा मानना तो यही है कि अगर आपको जब तक आप अपना स्टीयरिंग अपने हाथ में नहीं लेंगे, आप गाड़ी नहीं चला सकते, राइट? Yes. तो सिंपल फंडा है। सो अगर आपको लाइफ में इफ यू हैव अ यू विल ओनली हैव वॉइस इफ यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो उसके लिए हमें स्टेयरिंग जो है, ठीक है, अगर हम इतने परफेक्ट नहीं है तो पहले हम थोड़ा लेफ्ट साइड में बैठेंगे ड्राइवर के, देखेंगे कैसे गियर चेंज हो रहा है, कैसे क्लच दब रहा है, और धीरे धीरे जो है वो स्टेयरिंग हम अपने हाथ में लेना चाहिए। सो गवी, कुछ क्वेश्चंस आए हैं पार्टिसिपेंट्स के। Yes. फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आया है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ मनी शुड बी इन्वेस्टेड इन सेक्टर्स लाइक गोल्ड? So देखिए, अभी जैसे मैंने बताया आपको, कोई भी निवेश करने से पहले जो 5 चीजें जो मैंने बताया था, सेफ्टी, लिक्विडिटी, रिटर्न एंड इन्फ्लेशन एंड टैक्स, आप ये जरूर अप्लाई करना चाहिए हर एसेट क्लास पे, वो गोल्ड हो, इक्विटी हो, फिक्स्ड डिपॉजिट्स हो, रियल एस्टेट हो, डजंट मैटर वेयर यू इन्वेस्टिंग योर मनी। गोल्ड
as an asset class is a great asset class. There are no second thoughts about it. But there are many ways that have come to invest in gold today. I think आप जो financial saving जब निशा मैडम के साथ में या धीरज सर से में बैठेंगे, I think they are the right people to decide how much money should be invested in each of these asset class for different goals. Okay? और ये हर पर्सन के लिए अलग होता है. अगर किसी के पास ऑलरेडी 500 ग्राम्स गोल्ड है, शायद जरूरत नहीं है कि उसको एक्स्ट्रा गोल्ड लेने की, राइट? बट गोल्ड एज एन असेट क्लास में अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स करना है, बहुत अलग तरीके का आज का तारीख में निवेश का ऑप्शंस आए आपके पास. से फॉर एग्जांपल, gold we use for ourselves, then you go and give it to a daughter or son over a period of time. But I'm 100% sure my sister used to like a gold phenomenally. My wife likes it 50% only today. My daughter will never like gold. What is the new ornament for women today? This is Diamond. the dress they wear, the watch they wear, the phone they use, the bag they use. No more that jewelry of some 5 तोला का गले में बांध के. Ask my daughter is 9 years old. She just hates wearing gold at any given point in time. But she loves to wear a watch. अगर आपको इनहेरेंटली असेट को ट्रांसफर ही नहीं करना है किसी को जिसको पसंद ही नहीं है, सो आप उसको कितना ओन करना है, आई थिंक निशा एंड धीरज विल बी एबल टू डू दैट. नाउ हाउ कैन यू डू इट थ्रू म्यूचुअल फंड्स? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स, गोल्ड फंड्स. नॉर्मली जब गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वही गोल्ड में भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होता है. बट इसमें सबसे बड़ी एडवांटेज ये होती है, तो आपको उसको स्टोर करने की जरूरत नहीं है, रिस्क ऑफ लूजिंग का कोई नहीं है. आप वो गोल्ड में के थ्रू, एसआईपी के थ्रू आप लमसम जो करते हैं, गोल्ड आप कल्याण ज्वेलर में जाते हैं या किधर भी जाते हैं, उनका भी स्कीम होता है, महीना आप 2-3 हजार रुपए सेव कर दीजिए गोल्ड में. एट द एंड ऑफ द 11th मंथ हम लोग 1 महीने का डाल के आपको पैसा दे देंगे, या तो आप गोल्ड खरीदिए या आप गोल्ड ही खरीदना है आपको, उधर पैसा तो रिटर्न नहीं करेंगे आपको. गोल्ड फंड में अगर आप निवेश कर रहे हैं, वही गोल्ड का प्राइस रहेगा, उसी निवेश करिए आप. एट द एंड ऑफ 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर, अगर आपका डॉटर या सन का शादी में या किसी को गोल्ड देना है, आप उस दिन पैसा निकालिए, उस दिन का गोल्ड का प्राइस का ही भाव में आपको पैसा रिटर्न मिलता है, आप उसी से गोल्ड खरीद लीजिए. अगर गोल्ड नहीं चाहिए, उनका दूसरा और चीज चाहिए, आप वो पैसा निकालिए, आप उससे आप वो खरीद के दीजिए. सो 2 थिंग्स टू कंक्लूड. 1, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट इन्वेस्टर कि कितना परसेंटेज होना चाहिए पहले. दैट विल डिसाइडेड बाय हाउ मच यू ऑलरेडी हैव. सेकेंड ये है कि आप गोल्ड में निवेश करना ही चाहते हैं, इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, बट आप दूसरा तरीके से गोल्ड निवेश कर सकते हैं, नॉट नेसेसरली दैट यू हैव टू गो एंड फिजिकल गोल्ड ओनली. लास्ट पॉइंट, इमेजिन, मेरा वाइफ को मैं बारी बारी कहता रहता हूं जब भी मैं उसको ज्वेलरी खरीदना है, जब आप गोल्ड खरीदते हैं, यू एंड अप स्पेंडिंग 15, 20, 30, 40% ऑन मेकिंग चार्जेस. That itself will erode the wealth of creating return in gold. और जब भेजने जाते हो आप ऑर्नामेंट्स को, फिर आप उसमें से माइनस करते हो. जितना आपने रिटर्न बना लिया, वो सब तो मेकिंग चार्जेस में और सेल करने के टाइम पे प्योरिटी में निकलने में चला जाता है. सो आई थिंक यू शुड लुक एट गोल्ड एज अ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फॉर श्योर. हाउ मच टू बाय एंड विच वे टू बाय, उस थॉट प्रोसेस में आपको थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा. So, Gavi, एक और क्वेश्चन है. पूजा इज आस्किंग, प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट मैरिड विमेन प्रोटेक्शन एक्ट. सो आई अंडरस्टैंड टाइम तो नहीं है, बट स्टिल अगर आप कुछ मोटी मोटी उसकी बातें बता दें यहाँ पर. So देखिए, आई एम नॉट अ लॉयर वेरी ऑनेस्टली टू कमेंट ऑन अ सब्जेक्ट. As I said, Nisha is the right person to advise on tax. I think lawyer is the right person to answer such questions. But one thing that I am extremely happy in the country today, the way the society culturally has built over a period of time, where women used to look upon in a very, very, very different way, all the changes that is getting created by the existing lawmakers, I think this is extremely important, right? Today, the kind of things that we hear, that men leaving women at any stage of life, this protection will really, really, really help for sure.
And the other part that I'm saying, why one part is legal way, that Married Women Protection Act gives a legal support system in an unforeseen scenario that you can use that, right? So if it is not getting used at any given point in time, you involving yourself in a financial decisions will give a lot of clarity in terms of how much money as a family that we have today. And the best way to do it today is that you create will trusts. ये बहुत बड़ा लीगल सपोर्ट सिस्टम है आपके लिए. अनफोर सिनेरियो हो, in any of the things that I mentioned in my opening comments, अनफोर सिनेरियो में लीगैलिटी में झगड़ा करना बहुत मुश्किल होती है. अगर आपका प्रूफिंग हो जाता है विल या ट्रस्ट क्रिएट करने के थ्रू, your legal battles are much easier. So I suggest that Nisha will be definitely able to help you कि सही तरीके से ये जो चैलेंजेस एक वुमेन का लाइफ में जो आते हैं उसको लीगली कैसा प्रोटेक्ट करना चाहिए. I think Nisha would be able to definitely help you in terms of understanding on all these aspects much better. It's a subject by itself. I'm not getting too much into it, but I'm just giving a framework. लीगल के दायरे में आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं. Thank you, Gavi. So I'll discuss this with separately in detail. So if you have any more question, I would request participants, you can unmute yourself and ask the question, or you can drop in the chat box as well. तो सर जब हम गोल्ड का डिस्कशन कर रहे थे, एक और पॉइंट है कि जैसे जब हम गोल्ड को म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी एक और ब्यूटी होती है कि आप कितने भी अमाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट? अभी हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये लगता है कि यार अगर ये लेने जा रहे हैं कम से कम 40-50 हजार तो लगेगा ही, बट म्यूचुअल फंड में ऐसा कुछ नहीं है, आप 2000 से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट? और आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ म्यूचुअल फंड. Yes. So I think we don't have any question. So Gavi, thank you so much for giving insights on this topic. ये टॉपिक जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला कि देखो ऐसा नहीं है, हम स्टार्टिंग से ही women are called as Shri, श्री धन संपदा. women is a synonym of wealth. So हमारे अंदर वो ऑलरेडी सारी कैपेबिलिटीज हैं. वो जो हम फोटो देखते हैं ना माँ दुर्गा की, उनके इतने हाथ होते हैं. सो वी women we are different hats. So we are already capable. So इस सेशन का जस्ट आइडिया ऑब्जेक्टिव ही यही था कि विमेन के लिए जामवंत बनना, उनको वो याद दिलाना कि यस यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग दिस. एंड इस इंटरनेशनल विमेन डे का थीम है एक्सेलरेट एक्शन. सो मैं यही चाहती हूँ कि जितनी भी हमारे विमेन पार्टिसिपेंट्स हैं, आपने जितनी भी यहाँ पर बातें सीखी, जितना भी नॉलेज आपने गेन करा, प्लीज टेक एक्शन ऑन दिस. कि जैसा हमने बोला कि अगर आप स्टीयरिंग एकदम से अपने हाथ में नहीं ले सकते तो एटलीस्ट लेफ्ट साइड में तो बैठिए. एटलीस्ट जो भी आपने अभी समझा, जैसे सर ने बोला विल कितना इंपॉर्टेंट है, एसेट एलोकेशन होना चाहिए, एसएलआर हमें इवेलुएट करना है. You discuss this with your father, your husband, your brother, your colleagues. So discuss करिए, then attend more such workshop, more such discussions. If you have any questions, you can connect with me, you can connect with my team members. So just take action. There is no doubt that we are very good savers, but थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप लेके उस सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करिए एंड एंजॉय द फाइनेंशियल फ्रीडम. As a tax point, as a company, it is our mission to deliver financial freedom to everyone who is associated with us. So my request to everyone, to all the women who will be watching this webinar once we upload it, that please take action. Don't just इसको knowledge तक ही सीमित मत रखिए, इसको knowledge को increase करिए. Discuss on finance as well with your friends, with your colleagues, in your family. So thank you so much. Thank you, Prati. Thank you, Nisha. I think yes, as somebody saying. Yes, you can please unmute yourself and ask question. Oh my God, hello, Manao. No, I don't think we have any more questions. So no, thank you so much, Nisha, for this opportunity. I think it was our pleasure, and I'm extremely happy that
a woman working for an woman to make them financially freedom. And it's been a great initiative. I think this journey should not get restricted only to the Women's Day as a celebration. I think it's a journey that both of us has to live. We have to educate more and women as much as possible together. In that endeavor, it's a first step between Tax Point and Franklin Templeton. As we move ahead, we want to kind of have more initiatives focused on women so that we can create more wealthier women over a period of time. I just want to say one thing. um, History is the past and future is her story. And you see that happening in every walk of life right today. The kind of priority that corporates are giving to women, the amount of initiatives on education that is getting taken care of. But always remember, me, Franklin Templeton, any company in mutual fund industry, or Nisha madam, anybody can take a effort. But the first step has to be taken by you, and the future of your wealth will be only you what you do. Nobody can come and help you again and again. And we know that why we need that money over a period of time. Only 2 3 requests from my side as an actionable. One, please involve yourself in financial decisions in home. If you are not, if you are earning money, if you are taking a help of men in the home, please take a charge of your own money that you earn. Start learning yourself our financial savviness and start thinking big. Women generally hesitate, hold back themselves to think big. I think you put that vision in front of you, and you have an inherent strength of humility, discipline, and patience. I think you can, as I saying, women lives more than men. I strongly believe with that character, you can have more wealth than men with that discipline. These are the thoughts that we wanted to share with all of you. Thank you so much once again, Nisha madam, for this opportunity. And we will be more than happy to come forward for such conversations or any engagement that you wish to do from Tax Point. Thank you so much. And thank you everyone for a patient listening. Thank you so much, Gavi, for your time. And for all the participants, like I would like to update that we as TextPoint, we are financial consultants and we keep on doing, such webinars on a frequent basis. And we do yearly, quarterly, one-to-one meetings of meeting in small group as well. So if you want that, if you have 5 6 friends and you want to discuss, such topics, so you can anytime just give me a ring and invite, and we'll be happy to discuss these things with you. If you want we to discuss in this financial matters in your organization for women there, then we are very much open. Yeah, just invite us, just give me a ring, write an email to me, and we'll be happy taking such sessions in your organization or for a closed group as well. So thank you so much. A very happy International Women's Day to all of you. इस वीडियो की रिकॉर्डिंग मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और आपको अगर लगता है कि ये सेशन में आपने कुछ सीखा, तो आप जरूर इसको अपनी अदर फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, कोलिग्स के साथ जरूर शेयर करें. और यू कैन सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एज वेल, so that you will get update, you'll get notification about our other webinars and about our physical events as well. We do yearly events, quarterly events, and for that we don't charge anything. So that is just for the with the objective of investor awareness, because our mission is to deliver financial freedom in line with the government plan of Atmanirbhar Bharat or a Viksit Bharat. So with this, I would like to thank each one of you for your time. Thank you so much. Thank you, Nisha, so much, and wishing you all a very wonderful Women's Day and have a great time. Thank you so much. Thank you, everyone.